Good morning students. In previous lecture we learnt about acceleration, average acceleration and instantaneous acceleration and numericals related to this topic. In today's lecture we will learn about kinematic equations for uniformly accelerated motion. Kinematic equations for uniformly accelerated motion. Students, as we know, uniformly accelerated motion, there are three equations which you have studied in class 9th. Here we will derive these equations by graphical method also or by calculus method also. So as we know, in previous class you have learnt what are the three kinematic equations. These are V is equal to U plus AT, S is equal to ut plus half at square and v square minus u square is equal to 2as. These are the three equations of motion. This equation we use for finding velocity, and second equation for finding displacement, and third equation for finding velocity and displacement when time is not given. So let us start our today's topic, kinematic equations for uniformly accelerated motion by graphical method. First of all, we will solve these equations by graphical method. So in graphical method, let a particle, these are the equations for uniformly accelerated motion. It means particle is moving with uniform acceleration along a straight line. This is x-axis, origin O. Let a particle be moving with uniform acceleration and particle is starting from its rest position. Let its rest position is u. U be its initial velocity. U be its initial velocity. And particle is moving with uniform acceleration and reaches at this point. And this be its final velocity v. Here is its final velocity v. And velocity v and time taken by particle to move from this distance, to move from u to v, this position to this position. तो time कितना लिया इसने? Time taken by this is t. So let a particle be moving with uniform acceleration along a straight line with initial velocity u, and let v be its final velocity of the particle after time t. So the velocity time graph can be shown by this straight line AC. ये velocity time graph हम show कर रहे हैं और ये किससे show हो रहा है? AC के साथ. AC क्या है? एक straight line है. इट मीन्स पार्टिकल जो है वो अपनी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है. और अगर देखो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करनी हो तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करती हूँ मैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी उसकी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है. तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम. टाइम कितना था? t माइनस 0. तो देखो वी नो दैट यहाँ पे स्लोप भी मेरे पास क्या आ जाएगी? As we know, acceleration is equal to velocity upon time, change in velocity divide by time interval. देखो एक्सेलरेशन में ऐसे भी फाइंड कर सकती हूँ, और एक्सेलरेशन के लिए tan थीटा, अगर मेरे को यहाँ पे एंगल फाइंड करना हो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर भी मेरे पास क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम. और यहाँ पे tan थीटा के हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्सेलरेशन के साथ. तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन t. तो एक्सेलरेशन यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t. a t इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू v माइनस यू. और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे पता है क्या होती है? v is equal to minus u, it will change into plus u plus at. This is the first equation of motion from which we can find the velocity. अगर मुझे initial velocity, acceleration और time given है तो मैं velocity find कर सकती हूँ.
और अगर मुझे वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, तो मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर सकती हूँ. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ वी विल डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. Second equation of motion in which we can find the displacement. और अगर मुझे देखो इतना पता है इस ग्राफिकल मेथड से, देखो ग्राफ के मेथड से मुझे पता है कि एक बॉडी जो है वो अपने इनिशियल रेस्ट पोजीशन पे थी और रेस्ट पोजीशन से उसने कितने ली, इनिशियल वेलोसिटी u तक, और u के बाद वो अपना क्या किया, उसने डिस्टेंस यहाँ पे तक वो रेस्ट पोजीशन पे थी, और रेस्ट पोजीशन के बाद जब उसने मूव करना स्टार्ट किया मतलब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी, जब वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गई तो उसके पास वेलोसिटी कितनी है, v. तो इट मीन्स एक ग्राफ में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्टेंस कवर किया. तो अब मुझे ये s फाइंड करना है इस ग्राफ के लिए, ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है मुझे. तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करूँगी मैं, ये अपने ओरिजिन से स्टार्ट होके एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है पार्टिकल. तो देखो ग्राफ में अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ए सी, इसे दे दो नाम डी, और ई ओ, ये दो उसमें चेंज हो रहा है, ए सी डी ट्रायंगल में और एक रेक्टेंगल में. इट मीन्स मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर फाइंड कर लूँ तो मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी. तो इट मीन्स डिस्टेंस में क्या लूँगी, डिस्टेंस को मैंने एस के साथ डिनोट किया, एस इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी पार्टिकल की, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एज वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. So here area of triangle is half into perpendicular into base means half into length into breadth. यहाँ पे perpendicular क्या है, perpendicular ये length है, ठीक है, v माइनस यू, और बेस क्या है यहाँ पे, टाइम, ये वाला टाइम. सो हाफ इंटू लेंथ ले लिया मैंने, ब्रेड्थ ले लिया, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, v माइनस यू इंटू टी. तो मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पुट कर दिया, हाफ इंटू परपेंडिकुलर v माइनस यू इंटू बेस टी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ क्या है यहाँ पे v माइनस यू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ क्या है मेरे पास, सी ए डी ई ओ में मेरे पास लेंथ क्या है मेरे पास u, यहाँ से यहाँ तक की इनिशियल वेलोसिटी u है तो ये भी u हो जाएगी, और ब्रेड्थ क्या है यहाँ पे t, तो ये भी t हो जाएगा. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, u इंटू टी. तो मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पुट कर दिया u इंटू टी. सो सॉल्व दिस इक्वेशन, हाफ, और देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अभी मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव की है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. मीन्स यहाँ पे मेरे पास v माइनस यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू टी. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में v माइनस यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू टी. तो मैंने v माइनस यू की वैल्यू पुट कर दी, ए टी इंटू टी प्लस यू टी. तो मेरे पास देखो s का फॉर्मूला बन गया, s इज इक्वल टू यू टी, इसको मैंने आगे लिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर displacement, for finding displacement, and this is the second equation of motion. Now we will derive third equation of motion. देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी मुझे ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना है. तो ग्राफिकल मेथड के लिए मुझे कौन सी इक्वेशन को प्रूव करना है, मुझे इसको प्रूव करना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, देखो अब देखो इस ग्राफ को देखो, मतलब एक पार्टिकल अपनी ओरिजिन से स्टार्ट होके इनिशियल वेलोसिटी u तक पहुँचा और u के बाद वो अपनी फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंचा इन अ गिवन टाइम इंटरवल, t टाइम इंटरवल में अपनी फाइनल वेलोसिटी तक पहुंच गया. फर्स्ट इक्वेशन में मैंने इसकी वेलोसिटी फाइंड की, सेकंड इक्वेशन में मैंने इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड की. अब अगर मुझे टाइम गिवन ना हो तब मेरे पास क्या वेलोसिटी कैसे फाइंड करूंगी या डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करूंगी, वो मैंने अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है. तो देखो ये जो तुम्हारी ग्राफ है, ये ग्राफ एज अ ट्रेपेजियम दिख रहा है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कंप्लीट ये ट्रेपेजियम बन जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एस, टोटल डिस्टेंस जो मेरे पास एस जो है, सॉरी एरिया जो है वो मैं कैसे लिख सकती हूँ,
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो इट मीन्स इसके अंदर का पूरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाऊंगी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ही आ जाएगी, तो इसलिए मैंने एस के साथ लिख लिया, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये मेरे पास कितना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स में ये u है और ये टोटल क्या है v है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये u है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास क्या है v माइनस यू प्लस यू वी बन जाएगा। तो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ जाएंगी v प्लस यू इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट में मेरे पास क्या है ये हाइट, और हाइट किसको शो कर रही है टाइम इंटरवल को, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा t माइनस 0 t के साथ डिनोट कर दूँगी इसको, हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी। तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी। और टी के लिए देखो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में प्रूव किया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसको मैं लिख सकती हूँ v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी। और यहाँ से अगर मुझे t यहाँ पे चाहिए ही नहीं तो मैं t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकती हूँ v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। इट मीन्स मैंने t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी v माइनस यू अपॉन ए, और मेरे पास ये क्या इक्वेशन बन जाएगी 1/2a इधर आ जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे क्या लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इधर चला जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव होगी बाय ग्राफिकल मेथड, बाय टेकिंग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. So these are the equations of motion, uniformly accelerated motion by graphical method, v is equal to u plus at, and second equation of motion s is equal to ut plus half at square, and third equation of motion v square minus u square is equal to 2as. Now we will solve these three equations by calculus method, और calculus method को हम integration method भी बोलते हैं, also by integration method और by calculus method. Now we will derive these equations of motion by using method of integration और by calculus method. Calculus method और integration method is same. ठीक है, तो इंटीग्रेशन मेथड लिखा हो एग्जाम में, चाहे कैलकुलस मेथड लिखा हो, तो तुम्हें सेम उससे मेथड से सॉल्व करके आनी है इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो देखो अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशंस और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बोल रहे हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इट मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, लेट अ पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए along a straight line, along a straight line with initial velocity u, with initial velocity u, and let u be, v be the final velocity, u be its initial velocity and v be the final velocity of particle after time t. एक टाइम इंटरवल के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, v वेलोसिटी है, u वेलोसिटी से चेंज होके। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे प्रूव करनी है पहले, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एज वी नो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं हम, a इज इक्वल टू dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, और dv यहाँ से क्या आ जाएगा, dv इज इक्वल टू a dt। अब देखो इसको इंटीग्रेशन मेथड इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन होनी है सारी, और a क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं, तो इंटीग्रेशन से आउटसाइड जो भी कांस्टेंट टर्म होती हैं वो आउटसाइड आ जाती हैं, चाहे डेरिवेटिव में हो चाहे इंटीग्रेशन में हो। सो नाउ वी विल टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करना है, देखो मैंने इधर भी इंटीग्रेशन डाल दिया, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन दे बाहर, और किसी देखो टाइम इंटरवल के बीच में हो रहा है,
क्योंकि मैंने बोला है लेट अ पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a along a straight line with initial velocity u, मतलब पार्टिकल अपनी इनिशियल वेलोसिटी u पे था और उस टाइम पे टाइम कौन सा है, जीरो इंटरवल पे, टाइम t इज इक्वल टू जीरो इंटरवल पे उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती गई, u से v होती गई। तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन होगी dv की, तो वो किस में होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम u टू v और टाइम इंटरवल भी चेंज हो रहा है फ्रॉम जीरो टू t। तो मैंने इंटीग्रेशन देखो इस विद रिस्पेक्ट टू दिस करनी है। तो देखो dv के लिए इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें बोला ही है, इंटीग्रेशन के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन के लिए कोई भी पार हो तो उस पार में हम एक ऐड कर देते हैं और उसी पार में हम जो ऐड करके आया उसको लिख देते हैं, प्लस कोई कांस्टेंट लग जाता है। और अगर इंटीग्रेशन मेरे पास किसी कांस्टेंट जैसे इंटीग्रेशन के साथ डेरिवेटिव हो तो हमारे पास जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास वही टर्म लेफ्ट रह जाती है। तो देखो यहाँ पे dv की इंटीग्रेशन हो रही है, d मीन्स डेरिवेटिव भी है इंटीग्रेशन के साथ, तो यहाँ पे मैं किसके साथ रह जाऊँगी, सिर्फ v के साथ, u टू v इज इक्वल टू a। और यहाँ पे dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टाइम सिर्फ t रह जाएगा मेरे पास, 0 टू t। अब देखो अब लिमिट्स कैसे पुट करती हैं, इनकी लिमिट्स है कि टाइम जो वेलोसिटी थी वो सिर्फ इतने के बीच में है, u टू v। अब मैंने लिमिट्स पुट करनी है इनकी, तो लिमिट्स कैसे पुट करती हैं, अपर लिमिट पहले पुट करती हैं उसी वैल्यू में, पहले अपर लिमिट पुट करती हैं माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है v, अब मैंने इसमें क्या पुट कर दिया, v पुट कर दिया, v में देखो v पुट करेंगे तो v रह जाएगा, माइनस करती हैं हम फिर लोअर लिमिट। अब v की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, u पुट करना है, तो ये क्या बन जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू a। फिर से अपर लिमिट, t की जगह पे t पुट किया तो t रह जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, अब t की जगह पे लोअर लिमिट क्या है, 0, अब t की जगह पे 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बन गया, v माइनस यू इज इक्वल टू a t। तो v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस u प्लस a t। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, डेरिवेटिव के देखो इंटीग्रेशन दोबारा समझ लेना। इंटीग्रेशन के लिए जब भी हम इंटीग्रेशन में और डेरिवेटिव दोनों इकट्ठे आए तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसीलिए मेरे पास जहाँ पे dv की इंटीग्रेशन थी वहाँ पे मैं v के साथ रहेगी, और जहाँ पे dt की इंटीग्रेशन थी वहाँ पे t के साथ रहेगी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, लिमिट्स पुट कर दी। नाउ वी विल डिराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। Now we will derive second equation of motion which is s is equal to ut plus half at square। अब मुझे इसके लिए इस इक्वेशन को प्रूव करना है बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन मेथड के लिए पहले मैंने क्या लिया, एज वी नो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, वेलोसिटी से स्टार्ट किया और वेलोसिटी को हम कैसे कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी रिटन एज डी एक्स बाई डी टी। और डी एक्स को कैसे लिख सकती हूँ मैं, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। अगेन वही बन गया एक्सेलरेशन में जैसे मैंने लिखा था। तो यहाँ पे वेलोसिटी देखो, अब मैंने क्या कर देना है, यहाँ पे वेलोसिटी v की वैल्यू जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में प्रूव की है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी। डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, u प्लस ए टी इंटू डी टी। और देखो यहाँ पे ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। मैंने क्या किया, एडिशन में डी टी को साथ में लेके u के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और ए टी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने दोनों को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, इंटीग्रेशन करना है तो dx की इंटीग्रेशन u dt प्लस ए टी डी टी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। देखो dx मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, डिस्टेंस तो चेंज होगा ना जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी अगर कोई डिस्टेंस अपनी रेस्ट पोजीशन पे था तो फाइनल उसने कितना ले लिया, एक्स पोजीशन ले लिया, तो मैंने उस विद रिस्पेक्ट टू एक्स नोट टू एक्स उसकी क्या कर दी, इंटीग्रेशन कर दी। अब यहाँ पे u कांस्टेंट आ जाएगा, टाइम चेंज हो रहा है 0 टू t, टाइम यहाँ पे चेंज हो रहा है 0 टू t। तो पहले मैंने dx की इंटीग्रेशन करनी है, x नोट टू x, u बाहर ले लूँगी इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट टर्म, एक्सेलरेशन कांस्टेंट टर्म, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या बन जाएगी, कांस्टेंट टर्म, इसलिए हमने उसको बाहर ले लिया। सो एक्सेलरेशन भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगी।
और देखो dx की इंटीग्रेशन, अब मेरे को बताओ dx की इंटीग्रेशन लिखो जल्दी से। dx की इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा मेरे पास x, और लिमिट्स क्या है x नॉट टू x। नाउ नेक्स्ट वन u dt की इंटीग्रेशन क्या रह जाएगी t 0 टू t। नेक्स्ट a एक्सेलरेशन, अब देखो यहाँ पे t की इंटीग्रेशन होनी है, मतलब इंटीग्रेशन t dt है, लिमिट्स हम बाद में पुट कर देंगे, 0 टू t है। t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, t की पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर क्या हो जाती है 1 ऐड होती है। इंटीग्रेशन का साइन, अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो पावर में क्या हो जाता है 1 ऐड, और जितनी पावर आई है ऐड करके उतनी आ जाती है बिलो। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t 1 + 1 2 को भी मैंने क्या लिख देना है डिनोमिनेटर में, देन लिमिट्स पुट कर दूंगी 0 टू t। तब देखो लिमिट्स पुट कर दी, यहाँ पे x की जगह पे x रखो, x नोट रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह 0 रखा तो 0, देन a t की जगह t रखेंगे t²/2, जब 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। x माइनस एक्स नोट इज डिस्टेंस, इसको मैंने मान लिया s, s इज इक्वल टू ut, और ये u 0 बन जाएगा, प्लस ½ at², ये मेरी क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे प्रूव हो गई। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे dx/dt, फिर उसकी वैल्यूज पुट करके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वैल्यू पुट करके बोथ साइड्स इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लर्न कर लो कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशंस को, और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास लास्ट में इक्वेशन बन जाएगी s इज इक्वल टू ut प्लस ½ at²। नाउ वी विल डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन मोशन के लिए मेरे को दोनों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt भी चाहिए, एंड v वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt भी, दोनों इक्वेशन लिख लेंगे एक्सेलरेशन के लिए भी और वेलोसिटी के लिए भी। और फिर हम दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 1/2। देखो डिवाइड करेंगे तो a/v बन जाएगा इज इक्वल टू dv/dt अपॉन dx/dt, यही बन जाएगा ना। देखो मैंने डिवाइड कर दिया इसी को इसके साथ, और इसकी राइट हैंड साइड वाली टर्म को राइट हैंड साइड वाली टर्म के साथ, तो dt कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा a/v इज इक्वल टू dv/dx, और मेरे पास जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा v dv इज इक्वल टू a dx। अब मैं इसको क्या कर दूंगी इंटीग्रेट, v dv इज इक्वल टू a dx को मैं क्या कर दूंगी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दीज इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपको बार बार इन इक्वेशंस को प्रैक्टिस करना है फॉर ग्राफिकल मेथड के लिए भी और कैलकुलस मेथड के लिए भी। v dv इज इक्वल टू a dx, देखो v वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है u टू v, तो जब मैं इंटीग्रेशन करूँगी v dv की तो इंटीग्रेशन वेलोसिटी की करूँगी u टू v। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टेकिंग दिस आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन, और dx डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक है फ्रॉम रेस्ट टू x नोट टू x पोजिशन तक। सो नाउ वी विल इंटीग्रेट दीज इक्वेशंस। इंटीग्रेशन में देखो v dv है, तो मतलब वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू dv इंटीग्रेशन हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो v dv इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे v की पावर क्या है 1, तो v² 1 + 1 पावर ऐड हो जाएगी इंटीग्रेशन में, और जो पावर है वही डिनोमिनेटर में, और लिमिट्स क्या है इसकी u टू v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हमारे पास कोई टर्म नहीं है जिसको मैं इंटीग्रेशन कर सकूँ, और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट ईच अदर, तो मैं किसके साथ लेफ्ट रहेगी सिर्फ x के साथ, और लिमिट्स क्या रहेगी x नॉट टू x। नाउ वी विल पुट दी अपर लिमिट इज v में v पुट करेंगे तो यही रह जाएगा v²/2 माइनस लोअर लिमिट u, v की जगह पे u पुट करो u²/2, देन a अपर लिमिट x और लोअर लिमिट x नॉट पुट कर दो, तो देखो मेरे पास क्या रह गया v² माइनस u², 2 कॉमन है इज इक्वल टू a, x माइनस एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट है, तो मैंने इसको क्या ले लिया s ले लिया as, तो मेरे पास ये क्या बच गया v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ
मोशन। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के फॉर्मूला से, दोनों को डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो टर्म बची मैंने उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन के बाद मैं अपने लास्ट फॉर्मूला पे पहुंच गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिराइव्ड three equations of motions for uniformly accelerated motion by graphical method and by integration method or by calculus method. So in next lecture we will derive these equations for motion under gravity. Thank you.